Hey guys, my name is Mrityunjay Kumar Singh, and in this video we are going to talk about major landforms of India. So there are six major parts of India according to their classifications in geography, which are first plain, then plateau, then mountains, then island, and then desert. Then desert, and then coastal plains. The India is located in the southwest part of the Asia. The Tropic of Cancer. It divide the whole India completely into two parts, which is a 23 degree 1/2 north. Uh, India shares its boundary with China, Nepal in north, China, Nepal, Bhutan in north, Afghanistan and Pakistan in northwest, Myanmar in west, and Bangladesh in south. Sri Lanka is the only country which have boundaries with India, but not by land. It's by sea. So let's understand. This is. I have a separate map for this one. First, we will understand this. So I don't have this time the map of Tropic of Cancer and Equator right now. So suppose that this is the earth, so the one latitude go through this, which is 23 degree 1/2. I have and one goes between the earth, which is north to south, which is called equator. It is 0 degree, and one also go, which is also 23 by 1/2 degree, but it is in the south. Now if we talk about the boundaries, uh, this is here the political map of India. So I'm sorry that I have not stated the other countries, but I will show you. This is China. This is China, a very huge area, and this is Tibet. This area is Pakistan. Whole area is Pakistan till here, and a very short area is Afghanistan there upside. Okay. So, and if we talk about Bangladesh, so this is Bangladesh. This whole area is Bangladesh. Which go here and here, and there is also Myanmar in this area. This left area is Myanmar, which is the part of an Asian country. If we talk about Sri Lanka, so Sri Lanka is behind Kerala. Suppose that this area. So here is, sorry, this is the area, and here is Sri Lanka. Now this is the geographical map of India. So I'm going to explain right now. So this is the plains of India, the plains, which extend from Uttar Pradesh to Assam. Some plains are also found in Punjab, but that is in very short amount, which extend up to Pakistan. But we don't have to talk about that one. So, and this whole region is plateau. This region, which is brownish and whitish in color, is mountains, and you are seeing these lines on the coast, which is coastal plains. So I was saying that Sri Lanka is here and Myanmar is there, so I am showing you that this is the Sri Lanka. You are seeing my point. This is the Sri Lanka, and this whole Himalayan area is China, and this area is Pakistan, and this is Afghanistan. Now let's begin. One thing more. This is the Andaman and Nicobar, and this area is Lakshadweep. There are small islands. Sorry, this photo is blurred, but small islands are there present. There are 32 islands here, and roughly 232 islands in Andaman and Nicobar. Let's move. So let's talk about plain first. Plain are the most flat and fertile area of the earth. Plains are fertile because rivers flow through them throughout the whole year. The plains have large amount of tree and grass which make it suitable for agriculture. So suppose that this is a rough area.
rough, very rough. This is rough, fully rough. But in plains, this just like this. Nothing comes between it, and there are many trees here. Okay, so it is suitable for agriculture. Next, we can grow crops here very easily, which are sugarcane, rice, millets, and sugarcane. These crops need much water, which come from river which flow through plains. Then plains have water supply and maximum ऑक्सीजन इन एवरी प्लेस. यहाँ हर जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा रहती है और यहाँ पे वाटर सप्लाई भी अच्छा रहता है. यहाँ इसी कारण यहाँ पे सिटीज और गांव सबसे ज़्यादा है और यही कारण है कि यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. मैंने आपको अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश से असम के कुछ एरिया तक एक्सटेंड करती है. ये एक प्लेन का फोटो है और इसे आप नोटिस मत करिएगा, सिर्फ इसे देखिए. ये प्लेन्स हैं, ये वो माउंटेन्स है. फिर हम बात करेंगे प्लेट्यूज के बारे में. तो प्लेट्यूज जो होते हैं वो बहुत फ्लैट होते हैं, एकदम प्लेन जैसे फ्लैट, और बहुत ऊंचे कद पर होते हैं. ये बहुत ज़्यादा इनमें मिनरल्स पाया जाता है और ये इन पे खेती बाड़ी भी कर सकते हैं. यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो भी है, मिलेट्स है, तंबाकू है, फिर कॉटन है, शुगर केन है. यहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो भी नदियाँ है वो मैक्सिमम जो है वो बारिश पे ही निर्भर है. ये जो एरिया है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जब यहाँ से कोई नदियाँ बहती है तो वो बहुत लार्ज अमाउंट में बहती है. तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत बढ़िया है. यहाँ एक बीच में डैम रहता है और उसके अंदर एक पंप्स रहते हैं जिसके अंदर वो गोल गोल घूम के जाता है और यहाँ से निकलता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. फिर ये ट्रायंगुलर पार्ट्स में है. सो ये मान लीजिए कि इंडिया का एरिया है तो ये इस पूरे एरिया को छेक लेते हैं. और ये जो बचा कुचा है, ये इतना इतना जो बचा कुचा एरिया है ये सब कोस्टल प्लेन्स है. ये एक फोटो है प्लेट्यूज का, और आप ये मत समझिएगा कि ऐसे ही प्लेट्यूज होते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन भी होता है. फिर हम देखते हैं डेजर्ट के बारे में. तो डेजर्ट एक रूखा सूखा एरिया होता है जहाँ पे बहुत कम पौधे दिखते हैं. यहाँ पे जो गर्मी का मौसम होता है उसमें रात रात जो होती है वो बहुत ही कूल होती है, एकदम ठंडी ठंडी और अच्छी हवाएं चलती है, जबकि दिन बहुत गर्म होता है. बहुत यहाँ टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है दिन में. जबकि जबकि जब यहाँ पे ठंडी होती है तो रात में माइनस में चला जाता है रात में टेम्परेचर, और दिन कूल रहते हैं. यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत कम प्लांट्स की स्पीसीज जी पाती है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि ये मिट्टी है और यह एक पौधा है. तो अगर ये यहीं तक सीमित रह जाएगा तो यहाँ ये मर जाएगा क्योंकि यहाँ मोर देन 2% ऑफ वाटर भी नहीं होगा. 2% भी मैंने बहुत ज्यादा कह दिया. जबकि जो प्लांट्स यहाँ जीते हैं उनके रूट्स बहुत नीचे तक जाते हैं पानी की खोज में. फिर यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कैमल्स हो गए, वन हम टू हम, वो दोनों हो सकते हैं. वल्चर भी हो सकते हैं. वल्चर तो यहाँ पाए ही जाते हैं, मरे मरे चीजों को खाते हैं, या फिर सांप भी हो सकते हैं. ये राजस्थान के कुछ एरिया में मिलता है और गुजरात के एकदम थोड़ी सी एरिया में. मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा, आप अभी ही देख लीजिए. सो ये रहा. तो ये जो छोटा सा एरिया आप ये देख रहे हैं ये है राजस्थान. यहाँ पे ही पोखरान है, और ये थोड़ा सा जो एरिया यहाँ पे जा रहा है ये गुजरात का है. ओके, तो अब हम बात करेंगे, ये डेजर्ट का एक फोटो था. अब हम बात करेंगे आइलैंड के बारे में. तो जो आइलैंड होते हैं वो एक टुकड़ा ही समझ लीजिए जो लैंड में होते हैं. वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए रहते हैं, रिवर्स में भी पाए जाते हैं, ओशंस में भी पाए जाते हैं. फिर भारत के पास दो मेजर ग्रुप आइलैंड्स है जो कि है लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार.
फिर यहाँ पे जो खेती बाड़ी होती है वो सिर्फ ज्यादातर तो केले की होती है, तंबाकू की होती है और कोकोनट की होती है। यहाँ मछली के लिए जाल भी बिछाया जाता है। यहाँ फ्रेश वाटर मछलियाँ बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। फिर हम बात करेंगे माउंटेन्स के बारे में। तो माउंटेन्स एलिवेटेड पार्ट्स होते हैं, उठे हुए हिस्से होते हैं जो ज्यादातर या तो ज्वालामुखी या फिर अर्थक्वेक के कारण होते हैं। इनकी मिनिमम हाइट होती है सिर्फ 300 मीटर। और माउंटेन्स ये जो होते हैं वो लार्जेस्ट लैंडफॉर्म है, ज्यादातर ये कॉनिकल ही होते हैं। फिर माउंटेन यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट लाइफ सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। और लेकिन लोअर माउंटेन्स में ट्रीज बहुत सारे मिलते हैं, कॉर्निवरस ट्री मिलते हैं। और फिर बहुत सारे जानवर मिल जाते हैं, जैसे कि स्नो फॉक्स स्नो फॉक्स मिल गए, बियर मिल गए। फिर बहुत सारे एनिमल्स मिल जाते हैं। इंडिया में जो एरियाज बर्फ से ढके हुए हैं वो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और नागालैंड है। फिर ये एक इमेज है पहाड़ की। तो देखिए जो यंग यंग होते हैं, जो यंग माउंटेन्स होते हैं उनका एकदम ऐसे रहता है। उनके जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है एकदम पॉइंटेड होता है। और यहाँ ज्यादातर स्नोज ही मिलते हैं या फिर यहाँ बहुत ठंडी होती है। जबकि जो बहुत पुराने पुराने माउंटेन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से, यानी कि उनके स्टीप बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे आप ये अरावली रेंज देख सकते हैं इंडिया का। फिर हम देखते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो कोस्टल प्लेन्स लो लाइंग एरिया है जो सिर्फ एक तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है। हमने आइलैंड में देखा था कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, जबकि आइलैंड सिर्फ एक तरफ से घिरा रहता है। फिर यहाँ पे जो चीजें उगाई जाती है वो ज्यादातर बनाना होती है, कोकोनट होती है, और यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है। ये जो पौधे होते हैं वो बहुत नीचे तक पानी में जाते हैं और ये पानी में ही रहते हैं। एक तरह के वीड्स, लेकिन पानी में। यहाँ पे एवरग्रीन रहता है पूरे साल। तो यहाँ पे सिर्फ हाथी की बहुत ज्यादा मात्रा मिलती है हमें, राइनोसोरस भी यहाँ मिलते हैं। और ये ज्यादातर एज में ही है। एग्जाम्पल केरला। ये एक फोटो है कोस्टल एरियाज की। यहाँ पे मछली बहुत ज्यादा मिलती है, इसी कारण यहाँ पे ज्यादातर तो फिश ही पकड़ा जाता है। और यहाँ पे कोई ज्यादा खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर आप सबका शुक्रिया 12 मिनट मेरे साथ देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार सिंह। थैंक यू।